हेलो स्टूडेंट्स, आज तुम लोगों को इस एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में तुम लोगों को आज बताएंगे क्वांटम नंबर के बारे में। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, एटॉमिक नंबर, ये सारी चीज़ें तुम लोगों ने इस मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ एटम या मॉडर्न थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इस बारे में पूरा तुम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में स्टडी किया है। तो आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वांटम नंबर, जिसके बारे में तुम्हें बताएंगे। क्वांटम नंबर एक तरह से जैसे किसी का हमें पता लगाना है, किसी पर्सन का, तो पहले वो किस कंट्री में रहता है, फिर उस किस स्टेट में रहता है, फिर वो किस डिस्ट्रिक्ट में रहता है, फिर डिस्ट्रिक्ट के किस मोहल्ले में रहता है, ये पता लगा के हम उस तक पहुंचते हैं। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर जो राउंड लगाते रहते हैं, तो वो उनकी पोजीशन क्या है, किस शेल में है, किस सब शेल में है, किस ऑर्बिटल में है, इन सब की जानकारी जो नंबर हमें देते हैं उन्हें हम कहते हैं क्वांटम नंबर। The quantum numbers may be defined as a set of four identification number which are need to have full information of various electrons present in an atom, that is know about location, energy, shape, orientation and spin are needed. Or second, the various quantized values which give all information about an electron present on a particular atomic orbital are called quantum numbers. These are of four types. First, principal quantum number. Second, azimuthal or subsidiary or secondary quantum number. Third, magnetic quantum number, and fourth, spin quantum number. Now we take one by one. First, principal quantum number. This is represented by n. It describes the average distance of electron from the nuclei. It represents the principal energy level of electron or shell in which electron is present. The value of n is 1, 2, 4, 3, 5, so on. When n is equal to 1, this means electron in first shell, and when n is equal to 3, it means it is second shell. When it is n by 3, it means the electron is in third shell. Then we see that this quantum number tells about the shell of the इलेक्ट्रॉन, यानी किस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। सेकेंड, एजीमुथल क्वांटम नंबर. इट टेल्स अबाउट द सब शेल ऑफ द electron present in atom. It describes special distribution of electron cloud and the angular momentum of electron. It tells about the shape of orbital occupied by electron for any value of principal quantum number n. The azimuthal quantum number L can be value from 0 to n minus 1. Any value of n, the value of n is 0 to n minus 1. हमेशा एक कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी, और 0 से लेकर के. It represents sub energy level for electron. What is sub energy level? This is sub shell. When L is equal to 0, it represents S sub shell. When the value of L is equal to 1, then it represents P sub shell. When the value of L is equal to 2, it represents subshell D subshell. When the value is L is equal to 3, it represents subshell F. Maximum electrons present in subshell is equal to 2L plus 1. S subshell
2 electrons, p subshell 6 electrons, d subshell 10 electrons, and f subshell has 14 electrons. Now here see when n is equal to 1, L is equal to 0, यानी this is principal quantum number is 1, then azimuthal quantum number is 0. 0 represent as S subshell. S subshell contains 2 electron in shell. The first shell contains 2 electron. When n is equal to 2, यानी shell number second, L has 2 values 0 and 1, n minus 1 होगा. तो L has 2 values 0, 1, S and 0 represent S or subshell, and P represent and 1 represent P subshell. 2 subshell. S has a 2 electron and P 6. Total electron in second shell is 8. When n is equal to 3, then L has 3 values 0, 1, 2. Okay. Now here 3 subshell. 0 S, 1 P and 2 D. 2 से represent क्या हो रहा है? D subshell. Number of electron, S has a 2, P has a 6 and D has a 10. Total electron in third shell is 18. When n is equal to 4, then L is equal to 0, 1, 2, 3. 4 values. Now subshell present in shell S, P, D, F. That is fourth shell contains 32 electrons. सारा हम काउंट करेंगे 2, 6, 10, 2, 6, 10, 14 is equal to 32 electrons. Now we can say that first shell n is equal to 1, subshell 1s2. 1 shell के लिए जब subshell हम लिखेंगे तो इसके आगे 1s लगाएंगे और ये ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये है शेल नंबर यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आगे लिखेंगे. उसके बाद हम सब शेल लिखेंगे, उसके बाद उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ये ऑर्बिटल को भी रिप्रेजेंट करता है और सब शेल को भी. अब सेकंड शेल व्हेन n इज इक्वल टू 2, सब शेल 2 हो जाएगा. 2s2 यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेकंड शेल के दोनों सब शेल के आगे लिखेंगे हम 2s, 2p. इलेक्ट्रॉन इसमें 2 होता है और p में 6 होता है, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 8. थर्ड शेल व्हेन n इज इक्वल टू 3, सब शेल 3 हो जाएगा. s, p एंड d, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ 3 है तो तीनों के आगे हम 3 लिखेंगे. फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, 6, 10 is equal to 18. Now fourth when this is n is equal to 4 not 3, इसको 4 कर लेना. सब शेल 4s2 सब शेल हो जाएगा s, p, d and f. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, 6, 10 and 14 is equal to 32. तो इस तरह से जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कितने सब शेल में प्रेजेंट हैं. थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. दिस इज डिजिग्नेटेड बाय सिंबल m. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर ईच वैल्यू ऑफ L. दिस इज फॉर ईच वैल्यू ऑफ L the m may assume all integral values from minus L to plus L. ध्यान देना इसको. Each value of L has the value of m is equal to minus L to plus L including 0. That is total 2L plus 1 values. The value of m represent the number of orbital in subshell SPDF. इन SPDF यानी जो SPDF सबशेल हैं इसमें कितने ऑर्बिटल हैं ये बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. अब इसको देखते हैं. When L is equal to 0 it represent S
subshell. For L is equal to 0, M has a 0 वैल्यू. इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी L इज इक्वल टू 0, S सबशेल के पास सिर्फ एक ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल इन सबशेल. When L is equal to 1, it represents P subshell. P has a value for L is equal to 1, -1, 0, +1, 3 वैल्यू, यानी ये रिप्रेजेंट करता है कि P सबशेल में 3 P ऑर्बिटल हैं. ये पूरा जो ये है, ये क्या है तुम्हारा सबशेल, इसको बोलते हैं P सबशेल. और इसमें ये जो अलग अलग हैं, ये हैं ऑर्बिटल Px, Py, Pz, 3 ऑर्बिटल इन P subshell. Like this, when L is equal to 2, it represents D subshell. D subshell has a value -2, -1, 0, +1, +2, 5 values. Then this subshell D has a 5 D orbitals, 1, 2, 3, 4, 5 D orbitals in D subshell. When L is equal to 3, then it represents D subshell. D subshell has a value -3. This is -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 have a 7 values. Then F subshell has a 7 orbital. Okay. Now fourth is a spin quantum number. जिस तरह से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो साथ में इलेक्ट्रॉन में स्पिन भी होती है. जैसे ये इलेक्ट्रॉन है जो कि ऑर्बिट में घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन भी स्पिन करते रहते हैं, यानी अपने जो एक्सिस है उस पर घूमते रहते हैं. कुछ क्लॉकवाइज घूमते हैं और कुछ एंटी क्लॉकवाइज. तो यहाँ स्पिन क्वांटम नंबर इस तरह के डायग्राम से हम देखते हैं. स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? It was suggested that the electron, while moving around the nucleus in an orbit, is also spinning about its own axis, either in clockwise or in anti-clockwise direction. There are two possible, either plus or minus half, depending on the direction of spin. These are shown by the arrow, upward and downward spin. Plus half for clockwise spin, -half for anti-clockwise. It is written as S is equal to +-1/2. इस तरह से ऑर्बिटल में जब दो ये एरो बने हैं, इसका मतलब ये पहला इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज जो स्पिन कर रहा है और दूसरा ये एंटी क्लॉकवाइज. तो अब ये डायग्राम ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ये इस तरह से इसमें स्पिन हो रही है, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे घूमता है, इधर क्लॉकवाइज तो +half, एंटी क्लॉकवाइज तो -half. तो ये 4 क्वांटम नंबर हुए किसी भी इलेक्ट्रॉन के, जिनको ध्यान से पढ़ना और याद करना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल्स के बारे में डिटेल स्टडी हम पिछले वीडियोज़ में कर चुके हैं. यहाँ भी हमने देखा कि ऑर्बिटल क्या है. All orbitals of the same shell in the absence of a magnetic field possess the same energy, that is they are degenerate. Orbital S non degenerate. Orbital S क्या होती है? ये एक है, इनमें पार्ट डिवाइड नहीं है. ये एनर्जी इसकी सेम और ना सेम होने की बात नहीं है. अब है ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल P. 3-fold डिजेनरेसी होती है, यानी ये P ऑर्बिटल्स हैं और इनके 3 पार्ट है, Px, Py, Pz. लेकिन ग्राउंड स्टेट में तीनों की एनर्जी सेम होती है. इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर करते हैं तो पहले एक इलेक्ट्रॉन तीनों में आते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम होती है, जिस पे हम आगे कुंड रूल में डिस्कस करेंगे. फिर है D ऑर्बिटल. ये 5-fold डिजेनरेसी होती है. ये 5 टाइप होते हैं D ऑर्बिटल्स. इन सब की एनर्जी सेम होती है और ये पूरे क्या कहलाते हैं? सब शेल. इसी तरह F है 7-fold डिजेनरेसी. 7 ऑर्बिटल्स होते हैं F सब शेल में. Now all orbitals of same subshell differ in the direction of their space orientation. Okay.
Now third point, total number of orbitals in a main energy shell. Main energy shell means shell जो जिस यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1 2 3 जिनका होता है में जो जिसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। मेन एनर्जी शेल इज इक्वल टू एन स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए मेन एनर्जी शेल इज इक्वल टू एन स्क्वायर। किस तरह से? व्हेन एन इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी फर्स्ट शेल में 1s सब शेल होता है, 1s एक ऑर्बिटल होती है। n is equal to 2, then number of orbital 2 whole square is equal to 4, यानी सेकंड सबशेल में s और p होता है और p 3 ऑर्बिटल होते हैं p के पास p सबशेल पे, तो 2px 2py 2pz। n is equal to 3, then number of orbitals 3 square is equal to 9, इनमें इसके पास होता है 3s 3p एंड 3d, तो 3p हो जाएगा 3x 3py pz, तो ये हो गए 4। उसके बाद एंड 5d ऑर्बिटल्स होता है d में, तो टोटल कितने हो जाएंगे 9। इसी तरह n इज इक्वल टू 4 के लिए हो जाएगा 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 14। इसी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3s, फिर यहाँ पे 4s हो जाएगा 4px 4py 4pz एंड फिर 5 ऑर्बिटल्स दिखाया जाएगा। उसके बाद सारे के सारे f ऑर्बिटल्स जो पहले तुम लोग देख चुके हो उनको किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है लिख करके, तो टोटल नंबर आएगा 16 से ज़्यादा ऑर्बिटल किसी उस भी शेल में नहीं होते। नाउ पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दिस इज इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल और ये लगभग सब एग्ज़ाम में आता है, चाहे एनुअल हो, होम एग्ज़ाम हो या जो भी हो। तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज इम्पॉर्टेंट। ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज फुली कैरेक्टराइज्ड बाय ए सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। हर इलेक्ट्रॉन का अपना जो 4 क्वांटम नंबर होता है, ये क्लियर हो चुका। In 1925, Pauli presented a principle which controls the assignment of value of the quantum numbers of an electron in an orbital. The principle states that the Pauli exclusion principle states that no 2 electrons in an atom can have the same set of all the 4 quantum numbers. यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एटम में जो 2 इलेक्ट्रॉन एटम में होंगे उनके चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकते। यही है पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन अदर वर्ड्स, एन ऑर्बिटल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन बिकॉज 3 क्वांटम नंबर्स प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक at the most may be same, but the fourth must be different. That is, spin of 2 electrons present on 2pz orbital possess the following value of quantum numbers. यानी किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लो pz ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके लिए जो आगे लिखा होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, यानी n इज इक्वल टू, इसके लिए l इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और m इज इक्वल टू 0 होगा l इज इक्वल 0 के लिए, और s होगा प्लस हाफ पहला इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, उसके लिए भी n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, l इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ऑर्बिटल एक ही है, p है pz। लेकिन s क्या होगा दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, माइनस हाफ हो जाएगा। तो किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर जो है वो सेम नहीं होगा। यही पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। दिस प्रिंसिपल कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय टेकिंग अनदर एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह होता है 1s2 2s2 2p3 n7 होता है चूँकि इसका एटॉमिक नंबर। तो 1s2 को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, 2s2 को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे 2p3 है, p ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, तो पहले इलेक्ट्रॉन जो 3 होंगे वो इस तरह से आएंगे, ये क्लॉकवाइज होगा। अब इनमें देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसके लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए 1 हो जाएगा,
और एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 हो जाएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 हो जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर यहाँ इस इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा +½ अभी जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसके लिए भी इसकी वैल्यू सेम होगी, लेकिन यहाँ -½ हो गया, यानी दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर जो हैं वो सेम नहीं है। इसी तरह इसमें आ जाओ, n = 2 हो जाएगा इसके लिए, और चूँकि L है इस S के लिए, S सब शेल या ऑर्बिटल किसको सब शेल रिप्रेजेंट करती है, क्वांटम नंबर L को, तो L जो है 0 होगा S के लिए, M भी 0 हो जाएगा, और इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए S जो है ये +½ इसी तरह दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए ये 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ -½ हो जाएगा। अब थर्ड में आ जाओ कि पहले 3 इलेक्ट्रॉन इसमें आए हैं, तो सबके लिए n = 2 होगा, p के लिए l = होता है 1, तीनों के लिए 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ इसके लिए +1 होगा, m पहला इलेक्ट्रॉन है ये, दूसरा फिर +1 फिर -1 फिर 0, और उसके बाद सबकी तीनों की स्पिन सेम होगी, तीनों की स्पिन यहाँ सेम हो रही है, लेकिन यहाँ m की वैल्यू अलग अलग हो जा रही है, क्योंकि ये लाइन से 3 इलेक्ट्रॉनों के लिए -1 0 फिर +1 ऐसे होती है, तो यहाँ इसके लिए हो जाएगी +1 -1 और इसकी हो जाएगी 0। Out of 7 electrons, no 2 has same value of all 4 quantum numbers. With the help of this principle, it is possible to calculate the maximum number of electrons which can be accommodated in the main energy shell and subshell. Conclusion: the maximum capacity of a main energy shell is equal to 2n square, and the maximum capacity of a subshell is equal to 2l plus 1 electron. जो चीज़ पहले देखा है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ के देखते हैं। सब एनर्जी लेवल ये SPDF दिया है, इनके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 1 2 3 होगा। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2l plus 1 से जब हम इस वैल्यू रखेंगे यहाँ पे l के लिए क्या हो जाएगा 0 + 1 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 × 2 हो जाएगा +1, 2 × 1 + 1 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो जाएगा 2 × 2 + 1 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 × 3 + 1 × 14 electrons. Number of subshell in main energy shell is equal to the value of n. The value of n 1 2 3 shell number है ये। Number of sub energy level 1 2 3 4। फर्स्ट शेल के लिए हो जाएगा 1s, सेकंड शेल 2s 2p, थर्ड शेल 3s 3p 3d and 4s 4p 44 value of n. So this is what number of subshell in the main energy shell is equal to the value of n. Now number of orbital in main energy shell is equal to n square, ये पहले भी बता चुके हैं। 1 के लिए 1 स्क्वायर यानी s, 2 के लिए 2 स्क्वायर 4 यानी s p x p y p z, इसी तरह n इज इक्वल 3 के लिए 3 स्क्वायर 9, तो ये 9 हो जाएगा। 1 orbital cannot have more than 2 electrons. If 2 electrons are present, their spin should be in opposite direction. ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। Now these are problem. What is wrong with each of the following quantum number designations and or sub level names? इसमें क्या गड़बड़ी तुम्हें दिखाना है। यहाँ n = 1 दे रहा है तो l = 1 नहीं हो सकता, यहाँ 0 होगा। m = 0 तो ठीक है। नेम इसका क्या होगा, जब l = 0 होगा तो ये 1s होगा, नॉट 1p, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर यहाँ n = 4 तो n = 3 होगा, m = +1 नहीं हो सकता यहाँ, और l = 3 तो 4d ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये गड़बड़ है। उसके बाद यही चीज़ यहाँ दिया था, सबशेल L एंड F सबशेल एंड नॉट ए D सबशेल। द सब लेवल नेम शुड बी फॉर F। द C n = 3 है तो L = 1 एज ए 3 वैल्यू -1 0 +1 एंड नॉट -2।
एंड इट रिप्रेजेंट 2 3p, दिस इज राइट। तो कुछ चीज़ें इसमें सही हैं, कुछ गलत हैं, तुमको सॉल्यूशन में वही चीज़ें सारी लिखना है। इसी तरह डेजिग्नेट ईच सब शेल विथ n इज इक्वल टू 4। n इज इक्वल टू 4 के लिए l इज इक्वल टू 0 1 2 3 होगा, और इसके लिए सब शेल l 0 के लिए होता है 4s, जो कि n इज इक्वल टू 4 है तो सबके आगे 4 लगेगा। 1 के लिए 4p, 2 के लिए 4d और l इज इक्वल टू 3 के लिए 4f। अब है हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसके बारे में अभी बताया था कि जब एक ऑर्बिट जैसे p ऑर्बिटल है तो तीनों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो क्यों जाते हैं वो इसमें क्लियर हो जाएगा। हुम्स प्रपोज ए रूल रिगार्डिंग द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स ऑफ वेरियस सबशेल विच इज नोन एज हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अकॉर्डिंग टू द rule, when electrons are filled in degenerate orbitals of a subshell, pairing starts when each degenerate orbital is filled with an electron, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में पहले जाएगा। Before pairing, all the electrons filled have same spin, because in this state they attain least possible energy. In other words, first electrons having same spin enter the orbital of same energy one by one. Pairing of electron does not take place until all the available orbitals of same energy are singly filled, because in this state energy level of subshell is low. It means that pairing of electrons start only when second electron enters in s subshell, fourth electron enters in p subshell, sixth electron enters in d subshell and eighth electron enters in f subshell। अब ये हम डायग्राम से जो चीज़ें अभी पढ़ी उसको डायग्राम से देखे बगैर नहीं समझ में आएगी। अब जैसे ये s ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, फिर दूसरा आएगा, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तो नो प्रॉब्लम। एक के लिए प्लस हाफ स्पिन, एक के लिए माइनस हाफ। अब p में देखो, p में 3 ऑर्बिटल हैं यहाँ p सबशेल में, तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, दूसरा इसमें आएगा, तीसरा इसमें आएगा। अब 4th इलेक्ट्रॉन अगर है इसके पास तब ये इसमें आएगा, फर्स्ट इसमें पहले वाले में, और अगर उसके बाद अगला है तो इसमें आएगा, अगला है तो इसमें आएगा, तब जाके 6 पेयरिंग होगी। ऐसा नहीं है कि अगर जैसे ये इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो पहले इसमें 2 चलेगा, एक बाद में, ऐसा नहीं है, पहले एक तीनों में जाएगा, फिर 4th इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। इसी तरह d ऑर्बिटल है, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, है ना। उसके बाद अगर 5 इलेक्ट्रॉन, अगर सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल के पास तो एक सब में आएंगे। ऐसा नहीं कि 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, एक इसमें, ऐसा नहीं होगा, एक पाँचों पे हो जाएंगे। अब उससे ज़्यादा 6th इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो यहाँ पे आएगा, 7th है तो यहाँ पे आएगा, 8th है तो यहाँ आएगा, 9th है तो यहाँ। तो जब हम निकालते हैं वैल्यूज़ क्वांटम नंबर की तो ये हमें ध्यान रखना होता है, जब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पूरे पेयरिंग हो जाएगी। तो ये होता है हुंड रूल। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जैसे मान लो ये अब आयन अगर बन रहा है तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, तो स्टार्ट कैसे करते हैं, स्टार्ट विद द कॉन्फ़िगरेशन फॉर द न्यूट्रल एटम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। ऐड और रिमूव द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आयन बनने में अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो उसको हटा के लिखेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो उसको जोड़ेंगे। मान लो जैसे सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना होता है, बता चुके हैं, 11 इसका एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। अब ये एक इलेक्ट्रॉन दे के एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके Na+ बनाता है, तो यानी कि यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन ये 3s1 वाला हट गया। तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखेंगे 1s2 2s2 2p6। ऐसा नहीं है कि जो एटम का है वही आयन का भी लिख देंगे। यहाँ पे क्या है, एक प्रोटॉन, चूँकि नंबर ऑफ प्रोटॉन
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में बराबर होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन तो इसके पास 10 रह गए, लेकिन प्रोटॉन इसके पास 11 है, तो यानी इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा क्योंकि एक प्लस चार्ज ज़्यादा है। अब इस तरह से क्लोरीन का देख सकते हैं। क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्लोराइड आयन बनाता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे 3p6 हो जाएगा, यानी 1s2 2p2 2p6 वैसे ही होगा 3s2 3p6 हो जाएगा, यानी इसके पास अब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन उतने ही होंगे जितना कि इसके पास इसका एटॉमिक नंबर है। तो इस तरह से आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं। क्लोराइड का अभी बता दिया तुम लोगों को, इसको और ज़्यादा अलग करके लिखा हुआ है। 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 फिर px py pz को अलग अलग दिया है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिटल में 2 एंड थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन, और ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्लोराइड आयन बना लेता है। तो यहाँ पे भी इसका 3pz हो जाता है, यानी कंप्लीट 3p2 3py 3pz, तीनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4 होता है। तो 4 को ये डिवाइड किया है px py pz में 2 1 1। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के इन दोनों के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो O2 माइनस बनाता है। तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हो जाता है 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz2। इसी तरह अभी सोडियम का बता चुके हैं। और ये कैल्शियम का है। कैल्शियम का 20 होता है एटॉमिक नंबर, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है 2 इलेक्ट्रॉन ये अपना छोड़ करके कैल्शियम 2+ आयन बना लेता है। तो यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो इस तरह से अब तुम्हारा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर कंप्लीट हुआ। और इसके बाद कुछ एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चन मैं भेज दूँगी, उसको सॉल्व कर लेना और इसके नोट्स बना लेना PDF की मदद से। उसके बाद अब जब दूसरा वीडियो जब नोट्स तुम लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे तो अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।